Good morning, students. Welcome to your English class. Today we shall continue this chapter number 9, The Great Stone Phase 1. First part of this chapter we have already done. In this first chapter, we have come to know about the story, this Great Stone Phase 1. It is the story that tells us about a man named Ernest who resides in a valley. It is an ordinary town with a speciality. अब speciality क्या है? In other words, it has got a local mountain side that has rocks. These rocks are put together in such a manner that they resemble a very wise and very kind person from very far away. You can say from a distance. This face fascinates Ernest a lot. Attract करता है. His mother tells him of a local legend, local story. It says that a man who resembles the great stone face will return to the valley. This makes Ernest more interested in finding out about the man. In uh, in the story, we learn about his quest to find the great stone face. Ernest is always in the hope that someone resembling this stone face, will appear one day. Definitely he will appear, he will come one day. And this just equipped and this story equipped Ernest's interest even more in the great stone face. The Ernest is a happy and helpful child who grows up to be a mild and quiet adult. Many years ago, after many years, a man named Gathergolds, who had already left the valley, he is now a rich man who returns to the valley. People start thinking about Gathergold and start talking that Gathergold can indeed be look-alike of the Great Stone Face. But Ernest did not feel that he was the one. He goes every day and looked at the great stone face. It always make him wonder, surprised, why the look-alike has not come back yet. Now, let us continue the second part. Let us continue with the second part, whether he got the person of that same, of that who has the similarity with the same likeness with the great stone face or not. Let us discuss the second part of the story. The years went on, the time went on, बीतता गया, and Ernest grew to be a young man. एक young man बन गया, नौजवान इंसान बन गया. He attracted little notice from inhabitants. मीन्स ऐसा नहीं था कि ज्यादा अट्रैक्शन पे करता था, अट्रैक्शन अट्रैक्टिव लगता था, लोग उस पर ध्यान देते थे, ऐसा नहीं था. They pay little attractive in him. Why? They saw nothing remarkable in his way of life. जिस तरह से वो लाइफ जीता था उसमें कुछ भी रिमार्केबल कुछ स्पेशल नहीं लगता था. Except that only one thing was special. And what was that? When the labor of the day was over. Labor of the day means work of the day. Work of the day was over, he still loved to gaze upon the great stone face. उसी पर gaze करना, उसको देखना, उसको बहुत पसंद था. He looked at that. Because Ernest was industrious. अब reason क्या था? Ernest was industrious. Sorry, one line is left. Their idea was that they think that it was folly. And what was folly? What was folly according to them? It was folly to spend time on it, to look at the great stone face. It was folly according to them. Okay, so what they consider it, but it is a folly, the foolishness, but it was pardonable, means forgivable. इसको माफ किया जा सकता था. Why? Because Ernest was industrious. Ernest जो था वो industrious था, hard working था, kind था, and neighborly. Neighborly means a cooperative neighbor. Cooperative था, helpful था, kind था. They did not know, उनको नहीं पता था that the great stone face, what they did not know, that the great stone face had become a
टीचर टू हिम, उसका टीचर बन गया था। एंड दैट वाज द सेंटिमेंट, कि उसके अंदर जो सेंटिमेंट्स थे, इमोशंस थे, विच वाज एक्सप्रेस्ड इन इट, जो एक्सप्रेस होते थे उसमें, वुड enlarge his the young man's hurt. enlarge means bigger कर देना, बिग कर रहे थे, लार्ज कर रहे थे उस यंग मैन के हर्ट को। एंड हु वाज दिस यंग मैन? अर्नेस्ट। एंड फिल्ड इट विद डीपर सैम्पथीज, उसको डीपर सैम्पथीज से जो फीलिंग्स हैं ऑफ सोरो, अंडरस्टैंडिंग, वो डीपर सैम्पथीज, डीपर अंडरस्टैंडिंग से फील कर रहे थे देन अदर हर्ट्स, दूसरे हर्ट्स के, मीन्स दूसरे लोगों के हर्ट के मुकाबले। They did not know, वो नहीं जानते थे that from this would come a better wisdom, better intelligence आती है इससे, then could be learned from books, जो कि बुक्स से नहीं समझी जा सकती। Neither did Ernest know, अब लोगों को तो नहीं पता था, लेकिन अर्नेस्ट को खुद भी नहीं पता था that the thoughts which come to him so naturally, इतने नेचुरल वे में जो उसको थॉट्स आ रहे थे, in the fields, इन खेतों में, फील्ड्स में बैठे हुए, एट द फायर साइड पर बैठे हुए, जो उसको न्यू न्यू थॉट्स आ रहे थे, वर ऑफ अ हायर टोन, हायर टोन मीन्स हायर क्वालिटी के थे, देन दोज विच ऑल मैन शेयर्ड विद हिम, जो उन थॉट्स के कंपैरेटिवली जो कि सभी लोग उनके साथ, आदमी उसके साथ डिस्कस करते थे। A simple soul. Who was the simple soul? Ernest. Simple as when his mother first told him the old story. सबसे पहले जब उसकी मदर ने old story सुनाई थी, at that time he was a small child and he was the simple person. और अब भी वो उतना ही simple था। He beheld the marvelous face. He beheld means had, ने ऑब्जर्व करके रखता था अपने अंदर, उसने कहीं ना कहीं उसको सेव करके रखा हुआ था। लुकिंग डाउन द वैली, वैली पर की तरफ, डाउनवर्ड्स उसकी तरफ देखते हुए। एंड स्टिल वंडर्ड मीन सरप्राइज्ड, अभी वो सरप्राइज होता था। व्हाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस मीन्स सिमिलर फेस, व्हाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस मीन्स ह्यूमन, but human being who has the similarity with that face, great stone's face, was so long in coming. So long means delaying so much, इतनी लेट हो रही है, इतना लेट किस लिए हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा, why that person hasn't come yet, why it is that person is delaying, लेट हो रहा है इतना, why it is late to come. By the time, अब इस टाइम तक, पुअर मिस्टर गैदर गोल्ड, जो पहले आए थे, जिनको सबने कहा था कि हाँ ये तो बिल्कुल सिमिलर होंगे विद द ग्रेट स्टोन फेस, was dead, वो मर गए थे, एंड बरीड, उनको दफना दिया गया था। His wealth, उनकी जो वेल्थ थी, which was the body and spirit of his existence, existence उनके होने की, body and spirit एक तरह से उनका एक वो क्या प्रूफ था, of his existence, प्रूफ था कि हाँ he is similar to that face, great stone face, जो प्रूफ था, had disappeared before his death, उसकी डेथ से पहले ही डिसअपियर्ड हो गया था, डिसअपियर हो गई थी, उनकी सारी वेल्थ थी, प्रॉपर्टी थी, सब खत्म हो गई थी। since because the melting away of his gold, उनका गोल्ड जो था वो मेल्ट अवे मीन डिसअपियर्ड, खत्म हो गया था, फिनिश्ड हो गया था। इट हैड बीन जनरली एग्रीड, अब ये मान लिया गया था, जिन लोगों ने रेडिली एक्सेप्ट कर लिया था दैट ही हैज द लाइकनेस विद दैट ग्रेट स्टोन फेस, वो भी जनरली एग्री कर गए थे दैट देयर वाज नो ग्रेट लाइकनेस, कोई भी ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं थी आफ्टर ऑल, between the ruined merchant, ruined means spoiled, corrupt, इस करप्ट मर्चेंट में, बिजनेसमैन में, एंड द मैजेस्टिक फेस, वो बड़े से फेस में, अपॉन द माउंटेन, जो कि माउंटेन के ऊपर था। इट सो हैपन दैट, अब क्या हुआ, दैट अनदर सन ऑफ द वैली, वैली का एक और बेटा जो था, हैड बिकम अ सोल्जर, एक सोल्जर बन गया था, मैनी ईयर्स बिफोर, कई सालों पहले वो सोल्जर बन गया था। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग, मतलब इतनी सारे लड़ाई में लड़ने के बाद, ही वॉज नाउ अ फेमस कमांडर, अब आर्मी में भी एक प्रेस्टिजियस पोजीशन उसने गेन कर ली थी, दैट वाज ऑफ कमांडर। ही वॉज नोन, उसको जाना जाता था, ऑन द बैटल फील्ड, ऑन द एरिया ऑफ फील्ड, जहां पर लड़ाई लड़ते हैं उस एरिया में, मीन्स व्हेन ही यूज्ड टू फाइट इन दोज बैटल, उसमें कैसे जाना जाता था, विद द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर, कितना थोड़ा रिस्पेक्टेबल सा नेम है, तो उस नेम से जाना जाता था।
ओल्ड एंड टायर्ड, वो बूढ़ा भी हो चुका था, टायर्ड थक भी चुका था। नाउ ही हैड लेटली, लेटली मीन्स रिसेंटली, कि अभी अभी उसने रिसेंटली एक्सप्रेस्ड अ डिजायर, डिजायर मीन्स विश, एक विश एक्सप्रेस की थी। व्हाट वाज हिज विश? टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली, कि वो अपनी नेटिव वैली वापस आना चाहता है। नेटिव वैली मीन्स द बर्थ प्लेस वेयर ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप। द इनहेबिटेंट्स, वहां के जो निवासी थे, हिज ओल्ड नेबर्स, उसके पुराने जो नेबर्स थे, पड़ोसी थे, एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन, और उन पड़ोसियों के जो बड़े बच्चे थे, प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड टू वेलकम द रिनाउंड कमांडर, उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी वेलकम करने के लिए। रिनाउंड मीन्स वेल नोन, फेमस, कमांडर को वेलकम करने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। इट वॉज बींग सेड, ये कहा जाता था, दैट एट लास्ट, आखिरकार, द लाइकनेस ऑफ द स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड, आ गया है, कि सिमिलैरिटी, वो सिमिलर फेस टू दैट ग्रेट स्टोन फेस हैज एट लास्ट अपीयर्ड। ग्रेट देयरफॉर, इसीलिए वो महान भी था, ग्रेट भी था। ग्रेट क्या था? वो तो ग्रेट था ही, साथ में ग्रेट क्या थी? एक्साइटमेंट थी थ्रू आउट द वैली, पूरी की पूरी वैली में, पूरी वैली में एक्साइटमेंट थी। एंड मैनी पीपल हु हैड नेवर वंस थॉट ऑफ ग्लैंसिंग, ग्लैंसिंग मीन्स लुकिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि उस तरफ एक नजर भी डालनी है, एक झलक देखना भी है स्टोन फेस। नाउ स्पेंड मच टाइम इन गेजिंग एट इट, उसको देखने में, इन लुकिंग एट इट, काफी टाइम स्पेंड करते थे। और क्यों स्पेंड करते थे? फॉर द सेक ऑफ नोइंग, सो दैट दे मे नो एग्जैक्टली हाउ द ग्रेट जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड, कि वो ब्लड एंड थंडर एग्जैक्टली दिखता कैसा था, हाउ ही लुक्ड। ऑन द डे ऑफ द जनरल अराइवल, जिस दिन जनरल आने वाला था, अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली, बाकी सारे लोग जो थे वैली के, लेफ्ट देयर वर्क, उन्होंने काम अपना छोड़ दिया, एंड प्रोसीडेड टू मीन्स वेंट टू द स्पॉट, उस प्लेस पर चले गए, वेयर द ग्रेट बैंक्वेट हैड बीन प्रिपेयर्ड। बैंक्वेट मीन्स फीस्ट, पार्टी, जहां पर वो इतनी फीस्ट पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी, उस जगह पर चले गए। Soldiers stood on guard to safeguard that general. Soldiers खड़े थे, flags were waved, उसके वेलकम के लिए फ्लैग्स को वेव किया जाने लगा, and the crowd roared, crowd shout कर रहा था, और जो भीड़ लगी थी, जो क्राउड थी, उसमें शाउट हो रहा था, लोग शाउट कर रहे थे। Ernest was standing too far back, बहुत दूर खड़ा था, to see blood and thunder, उस ब्लड और थंडर्स फेस, उसके फेस को देखने के लिए। However, फिर भी he could hear several voices, इतना दूर खड़ा था पर उसको बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही थी। It is the same face exactly, अब लोग क्या बोल रहे थे? ये तो वही फेस है, ये तो exactly वही फेस है। Cried one man, एक आदमी चिल्लाया, dancing for joy, और खुशी से वो डांस करने लगा। Let us discuss, ये वही है क्या? Wonderfully like it, बिल्कुल exactly, wonderfully, ये तो बिल्कुल सेम है, exactly वैसा ही है। That is the fact, that is the truth, fact means truth, ये सच है, बिल्कुल सच्चाई है। Replied the other, दूसरा पर्सन ने रिप्लाई किया, आंसर दिया। And why not, क्यों नहीं? Cried the third, तीसरा चिल्लाया कि क्यों ना हो। He is the greatest man of this or any other age, इस या किसी और भी एज का, किसी और युग का ग्रेटेस्ट मैन है, ग्रेटेस्ट सन है। बियॉन्ड एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट, बिना किसी डाउट के ये ग्रेटेस्ट मैन है, ग्रेटेस्ट सन है इस प्लेस का, इस वैली का। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल फेस, वो भी जनरल का फेस देख पाया एट लास्ट। एंड इन द सेम ग्लांस मीन्स सेम लुक, एक ही लुक में, टू द साइड, उसकी साइड में, ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस, वो ग्रेट स्टोन फेस भी देख सकता था। ये देखिए, यहाँ पर जनरल है और इसी के पीछे ही हमारा ग्रेट स्टोन फेस भी है, वो दोनों को एक साथ ही देख सकता है। इफ देयर वॉज सच अ लाइकनेस, कि वो कंपैरिजन कर सकता था कि क्या उसमें सिमिलैरिटी थी। एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड मीन्स अनाउंस, जो प्रोक्लेम्ड किया था क्राउड ने, उस तरह की सिमिलैरिटी है या नहीं, वो सब जज करने के लिए। अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, वो कुछ आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाया कि कोई सिमिलैरिटी है, उसे नहीं फील हुआ दैट देयर वाज एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द ग्रेट स्टोन फेस एंड दिस जनरल।
The fear not Ernest, डरो मत Ernest, said his heart. उसके अपने दिल से आवाज आ रही थी. As if the great stone face was whispering. ऐसा लग रहा था जैसे great stone face जो है ना वो whisper कर रहा था. Slow volume में उसको कह रहा था, whispering to him. Fear not Ernest, डरो मत Ernest, he will come. वो surely आएगा, वो जरूर आएगा. The human likeness of his face would surely come. I hope this chapter is clearly understood to you.